everyone, welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Students, in my previous videos, I have already taught you about different system. हमने skeletal system पढ़ा, digestive system पढ़ा, and even we have studied about skin. So students, today we are going to talk about the respiratory system. So before we start, students, those who have not yet subscribed to my channel, do like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Now, without wasting time, get ready with your paper and pen and let's start. तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is respiration. Respiration क्या है? Respiration is a biochemical process of releasing energy by breaking down glucose for carrying out life processes. मतलब क्या हुआ? ये एक तरीके का बॉडी में होने वाला बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से ही हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होएगी. और ये एनर्जी कैसे रिलीज होएगी स्टूडेंट्स? ये एनर्जी रिलीज होएगी ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से. और ये एनर्जी क्यों चाहिए हमें? ये एनर्जी हमारी बॉडी को इसलिए चाहिए ताकि हम डिफरेंट प्रोसेसेस हमारी बॉडी में टेक प्लेस कर सके. ओके, सो रेस्पिरेशन एक तरीके का बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होएगी ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने की वजह से, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए. सो जो ग्लूकोज है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन will give carbon dioxide and water with lot of energy. So this is the chemical equation. We can see glucose is C6H12O6 plus 6O2, that is oxygen, will give 6 CO2, 6 water molecules and energy will be released. Students, before we go in deep about respiratory system, there are 4 important points we need to understand. The very first point is cellular and tissue respiration. So students, ये जो respiration हम बोल रहे हैं cellular और tissue respiration, इसको हम cellular क्यों बोल रहे हैं? हर एक living cell के अंदर within the cell respiration take place होता है और उस तरीके के respiration को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर टेक प्लेस होता है. ओके, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग सेल. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विल टेक प्लेस इन सीरीज ऑफ स्टेप. एक ही स्टेप में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा डायरेक्ट एनर्जी में. ओके, जो ग्लूकोज है वो स्लोली विद सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स वन बाय वन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. ओके, इट विल गिव एनर्जी. और कुछ स्टेप्स इसमें से साइटोप्लाज्म में होंगे और कुछ ऐसी साइकिल्स हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे. ओके, तो एकदम से ही कन्वर्ट नहीं हो जाता है एनर्जी में. इट विल अंडरगो अ सीरीज ऑफ स्टेप्स. नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज it will need specific enzymes. Each chemical step will need a particular enzyme. The next important point is जो भी हीट रिलीज होएगा ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो भी हीट रिलीज होएगा उसमें का ज़्यादातर पार्ट क्या रहेगा? will be in the form of a ATP. That means a chemical substance. ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो जो भी एनर्जी रिलीज होएगी, मोस्ट ऑफ द एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ ATP and very little part will be released in the form of heat. Students, 1 mole of glucose when undergo a complete oxidation will give 38 molecules of ATP. Okay? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जब पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है तब वो हमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP देता है. ATP इज अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी करेंसी विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल. द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी शुड नो इज the respiration takes place in both plants and animals. So the essential steps which happens in a cellular respiration is
almost the same in both plants as well as in animals. So now we will talk about why do we need energy and who need energy more. When comparing plants and animals, we can say animals need more energy than plants. What are the reasons? Let's see. The very first reason is animals are moving. Okay, the movement is the first reason we can say animals need more energy, because the animals are moving from one place to another place, so they need more energy compared to plants. Secondly, the food animals are taking is in the form of complex, okay, not like plants. Plants take direct sunlight, they take water, minerals, right? But animals take the food in a complex form, so they need more energy to digest that food for the energy. Then also when we talk about the organs and the organ system, in animals they have comparatively more complex organ and organ system when compared to plants. Then the next point is the temperature regulation. Animals have to regulate their body temperature according to the environment, right? So for that also they need energy. And the last important point is the complex digestive system. The digestive system present in animals are complex than the plants. Okay, so these are the reasons why we can say animals need more energy compared to plants. Students, if we have to compare among the animals who need more energy, we can say birds and mammals, including human. We need lot of energy. We have to produce a lot of heat to keep our body warm. Okay, because we are warm blooded animals. हम कैसे animals हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, तो हमें बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होता है ताकि हम अपने बॉडी को वार्म रख सकें. ओके स्टूडेंट्स, सो टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर वी नीड मोर एनर्जी. We have to produce a lot of heat, and this heat comes from respiration in the cell. So due to this respiration, heat is produced in our body, and the two places where we can say more heat is produced, energy is produced, is first the liver cell, which produce much heat, and muscle cells also contribute to it. So I hope you have understood how we are getting energy from respiration. Through the breakdown of glucose with the help of oxygen, we are getting energy, and it is in the form of ATP, and some amount of energy is in the form of heat. Animals need more energy than plants, and in animals also, birds and mammals need more energy compared to cold-blooded animals. Okay. Now we will talk about how the glucose is breaking down to give us energy. So, as I said, the simple carbohydrates, that is the glucose, will break down to fulfill the respiratory needs to provide us energy. But what about those animals which do not have glucose, do not consume glucose, which are flesh eaters, which eat a lot of protein in the diet? They have very little carbohydrates. Then what will happen to those animals? So in humans or in animals where there is very less amount of carbohydrates, protein is being used for the energy. Okay, so where there is unavailability of glucose, the proteins and fats are used. Okay, where are they used from? In the liver. The liver cells are going to break down the protein and fats. And what are they going to break down? They are going to break down the excess amino acids. Okay, through the protein digestion जब होता है बच्चों, okay, when the protein digestion takes place, तो उसमें अमाइनो एसिड्स रिलीज होते हैं. यस, सो ये जो एक्सेस अमाइनो एसिड है, these amino acids are converted into glucose first. Okay, और दूसरा कौन सा पार्ट बचता है? Nitrogenous waste. Yes or no? The nitrogenous waste is nothing but the
urea which is excreted out. So one more time let me explain you this. See students, जिन एनिमल्स में फॉर एग्जाम्पल फ्लैश ईटर एनिमल्स जिसमें प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब अनअवेलेबिलिटी ऑफ ग्लूकोज रहता है तो प्रोटीन और फैट्स तो लीवर में वैसे भी ब्रेक डाउन होते हैं, तो जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो क्या रिलीज होता है, अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स जो एक्सेस अमाइनो एसिड्स है वो अब्जॉर्ब्ड किया जाता है लीवर के सेल्स के थ्रू और कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिया में। ओके, तो अमाइनो एसिड्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं और कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज एंड यूरिया में। तो यूरिया तो एक्सक्रीटेड आउट निकल जाता है, जबकि ग्लूकोज को या तो स्टोर किया जाता है लीवर में या तो इमीडिएटली उसको यूज किया जाता है फॉर एनर्जी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो ये तो बात होगी बच्चों की ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन होएगा या तो एनारोबिक। एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को यूज करके रेस्पिरेशन हो रहा है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे भी रेस्पिरेशन सेल्स कर रहे हैं। ओके, तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सो इन एनिमल्स वी कैन से एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। ओके, एक्सेप्ट द टेप वर्म्स, जो टेप वर्म जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस होता है। उसके अलावा इन एनिमल्स एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होगा, ये भी ह्यूमन की बॉडी में टेक प्लेस होएगा, एनिमल्स में टेक प्लेस होएगा, बट कभी कभी होगा, नॉट ऑलवेज। ओके, कभी होगा, टेम्पररी होगा, फास्ट वर्किंग स्केलेटल मसल्स में होगा। स्केलेटल मसल्स जब फास्ट वर्किंग कर रही है, रनिंग कर रहे हैं हम फास्ट, बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए वॉकिंग कर रहे हैं, या तो स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग जैसे हम हैवी वर्क कर रहे हैं, तब क्या होगा, हमारी मसल्स के पास इतना टाइम नहीं होगा कि उनको ऑक्सीजन मिल पाए। ओके, तो उस टाइम पे वो सेल्स कैसे रेस्पिरेशन करेंगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी। ओके, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी को उस टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा लैक्टिक एसिड। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन जब भी टेक प्लेस होएगा तब प्रोड्यूस होएगा हमारा लैक्टिक एसिड्स, तो मसल्स में प्रोड्यूस हो जाएगा लैक्टिक एसिड। सो लैक्टिक एसिड के साथ क्या प्रॉब्लम है बच्चों, जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में तब हमें थकावट फील होती है, फटीग फील होता है। ओके, सो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। ओके, कर्ज ले लेते हैं हम लोग। ओके, ऑक्सीजन डेप्थ। सो ये कैसे क्लियर होएगा, ये डेप्थ कैसे क्लियर होता है, जो ये लैक्टिक एसिड है वो स्लोली ऑक्सीडाइज होने लग जाता है एक बार जब ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। मतलब क्या है बच्चों, देखो जब कोई इंसान या कोई भी है जो ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, जब मसल्स ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रनिंग हो रहा है, वेट लिफ्टिंग या स्विमिंग, ऐसा कोई भी विगरस एक्टिविटी जब हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे मसल्स के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। ठीक है, तो टेम्परली वो क्या करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देती है। मतलब सेल्स रेस्पिरेशन तो करेंगे ही, लेकिन ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, फिर भी वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम तो वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन इसी के थ्रू, इसी की वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा बॉडी में। ओके, मसल्स में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमें थकावट फील होगी और उसी कंडीशन को हम बोलेंगे ऑक्सीजन डेप्थ। अभी ऑक्सीजन डेप्थ कैसे क्लियर होएगा, मतलब हमें कभी बेटर फील होएगा जब हम रेस्ट करेंगे। आफ्टर द एक्सरसाइज व्हेन वी आर रेस्टिंग, तो ये जो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में प्रोड्यूस हुआ है वो धीरे 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 ऑक्सीडाइज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। बाद में जब हम बैठेंगे तो रिलैक्स होएंगे, तब तो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होएगी ना बॉडी में। दैट टाइम द लैक्टिक एसिड विल स्लोली गेट ऑक्सीडाइज्ड और ये डेप्थ क्लियर हो जाएगा, मतलब हमको बेटर फील करेगा। वी विल नॉट फील थका हुआ। ओके,
I hope you have understood how anaerobic respiration also takes place in human body, and मोस्ट ऑफ द टाइम तो हर वक्त क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कभी कभी हमारी फास्ट वर्किंग स्केलेटल मसल्स में टेक प्लेस होता है. सो नाउ लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन का एक डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं फटाफट, ताकि हमारा ये जो पढ़ाया हुआ है आपको अच्छे से समझ में आ जाए. एनाएरोबिक में क्या रिएक्ट हो रहा है बच्चों, सिर्फ ग्लूकोज, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन एरोबिक में ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों रिएक्ट होंगे. यहाँ पे जो तरीके का कंबशन है वो इनकम्प्लीट कंबशन है, जबकि एरोबिक एक कंप्लीट कंबशन है. यहाँ पे अगर आप एनर्जी देखोगे तो वो कम एनर्जी रिलीज होती है कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन. यहाँ पे सिर्फ आपको कितने ATPs दिख रहे हैं, ओनली 2 ATPs आर रिलीज, वेयरएज एक मोल ऑफ ग्लूकोज में 36 to 38 ATP रिलीज होंगे जब वो एरोबिक रेस्पिरेशन अंडरगोज जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है इन एनिमल्स, इट इज लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड, और ईस्ट में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ही वो फूलता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जिसकी वजह से वो फूलता है. क्या फूलता है, बेकरी में जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं लाइक ब्रेड, बन, हम जब बनाते हैं केक, सो ईस्ट डालते हैं ब्रेड्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, फूल जाता है, वो स्पंजी बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. तो वहां पे भी कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. ओके, लेकिन जब एनिमल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड रिलीज होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन में तो हमें पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं विद लॉट ऑफ एनर्जी. अभी लोकेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में ही होगा सिर्फ. ओके, वेयरएज सेल में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में क्या टेक प्लेस होएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होएगा. Okay, so I hope you have understood about the anaerobic respiration and the aerobic respiration. Let's see the chemical equation of aerobic respiration. See, glucose है, ये हमारा ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और ATP बन रहे हैं, राइट. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लूकोज है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, है ना. यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ओनली ग्लूकोज अंडरगो जा रहा है और बना रहा है लैक्टिक एसिड और एनर्जी. ये एनिमल्स में हो गया, है ना. और ये हो गया हमारा ईस्ट में, जिसमें ग्लूकोज क्या होएगा, ब्रेकडाउन होएगा और क्या बनाएगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होएगा, और इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है. तो इस तरीके से ये केमिकल स्टेप्स आप लोगों को आने चाहिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या है और एनारोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या है. स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो. इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके. बिफोर आई स्टार्ट इन डिटेल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा. इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड आप सबसे एक काइंड रिक्वेस्ट है, जिसे भी ये चैनल पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियो समझ में आ रहे हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, डू लाइक, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Bye bye. Thanks for watching.